So what we are going to do today, guys, is essentially the last part of our course of the last part of our chapter, which deals with the Nehruvian era. So let's just quickly see that what we had covered in the previous class. Okay, this will be a sort of a revision. So we had initially talked about the overview of the Indian economy, and in the overview part I told you that the period between 1950 to 1983-84 is called as the Hindu rate of growth. तो इस पीरियड को हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से डिफाइन करते हैं. ये पूरा पीरियड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का है. एंड दिस टर्म आई हैड टोल्ड यू वाज कॉइन्ड बाय के.एन. राज और राइट विंग इकोनॉमिस्ट. तो ये बेसिकली एक एलिगेशन है that India was constrained to a low level of output because of the kind of policies that it followed, and we find a structural break in mid 80s because of the kind of initial liberalization attempted by under the government of Indira Gandhi, and then some reforms introduced by Rajiv Gandhi. Then we had those big bang reforms coming in the 1990s which owed their origin in the crisis of 1990. ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्राइसिस और उसके बाद रिवाइवल की बारे में बात हो रही है. तो 1992 से 1996 के बीच में रिकवरी होती है इंडियन इकोनॉमी की, एंड देन यू हैव अ मैसिव डिसेलरेशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1997 टू 2003. and 2003 till 2007 is perhaps known as the golden period of Indian economy, because इस पीरियड में हम काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहे होते हैं. वी विल टॉक ऑल अबाउट इट in the coming readings in this semester as well as the coming semester. And then we see a slowdown, firstly because of the global financial crisis, and then because of the structural slowdown that we had, kind of a structural slowdown between 2011 and 2014. Partly that slowdown was because of domestic reasons and partly because of international reasons like the Eurozone crisis, Brexit, the Chinese slowdown, एंड हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, एज वेल एज जो स्कैम्स चल रहे थे, प्लस एनपीए का प्रॉब्लम बिल्ड हो रहा था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था. सो उस सारे रीजंस की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका था 2013 में, एंड देन डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गया था इंडियन करेंसी का. So all those reasons were there, and 2014 onwards we see a revival of the economy under the new government under Prime Minister Modi, and it took a number of major reforms, a lot of reforms which you talk as structural reforms, and you talk about these factor market reforms. So Prime Minister Modi के अंदर we had this land reforms happening. Now we have the agri reforms happening. कुछ extent तक credit reforms भी हुए हैं. Then you have labor market reforms happening. Then you have taxation with GST. So this government has taken a number of bold steps in its economic discourse over the last 7 odd years. However, we see that 2019 onwards we have a structural slowdown problem जहाँ पर consumption ही गिरने लग गया हमारी इकोनॉमी में. So we see this slowdown, and then we have the impact of COVID जहाँ पर हमारी इकोनॉमी in the year of 2020-21 is expected to slow down by reduce the size by 6.2-6.3% as per the initial estimates which have been given on 30th of May 2020 to 21. So this was the walkthrough that we had done in the Indian economy. Then we had seen, when we talk about our reading, we had also seen that this period of Nehru was championed by his philosophy of Fabian socialism, where सोशलिज्म के साथ हम डेमोक्रेटिक एथोस लेके आए थे. एज आई टोल्ड यू, जहाँ पर भी सोशलिज्म आया वहाँ पर वायलेंस और वहाँ पर ब्लड शेड ज़रूर आया, बट इंडिया वॉज एबल टू इंट्रोड्यूस द एथोस ऑफ सोशलिज्म एंड मिक्स इट विद इट्स ओन डेमोक्रेटिक एथोस, एंड हमारा बाल्कनाइजेशन नहीं हुआ उस पीरियड के अंदर. सो वी वर एबल टू विदस्टैंड ऑल द बाल्कनाइजेशन टेंडेंसीज दैट वर देयर, एंड वी वर एबल टू यूनाइट इंडिया एज अ यूनियन, एज भारत. ठीक है. सो और हम जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है अक्रॉस स्टेट्स वो हम बाइंड कर पाए इन फेबियन सोशलिज्म. ठीक है. Then and we see that the growth period of at least Nehruvian period is qualitatively and quantitatively different from what happened before it and what happened after it. And there are certain issues that we discuss in this period.
तो ये एलिगेशन ऑफ वेस्टेड पास्ट की जो बात है, ये जो एलिगेशन ऑफ वेस्टेड पास्ट की जो बात है, ये तो हम काफ़ी हद तक एड्रेस कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो वी ऑलरेडी वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि द ग्रोथ इन दिस पीरियड was not less, was somewhere around 4%, whereas the growth that preceded this and the growth that came after this 1900 टू 1947 का ग्रोथ, एंड अगर आप 64 से लेके 80 तक का ग्रोथ देखो तो दोनों के ग्रोथ रेट से ज़्यादा ग्रोथ रेट है हमारे वाले पीरियड में। तो वी कैन नॉट हैव द एलिगेशन ऑफ दैट वी हैड अ पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशली इन रेफरेंस टू इफ वी टेक द हिस्टोरिकल बर्डन कि हमारा इतना पुअर ग्रोथ रेट था इस पीरियड में, हम 1% से ग्रो कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर कुछ नहीं था। तो ये स्ट्रक्चरल कॉर्नर स्टोन ले किया इस पर्टिकुलर एरा में हमने। We also studied about the alternative strategy, which was the Vakil and Brahmanan strategy, and we talked about that how that was not a viable policy for us, क्योंकि आप consumer goods पे focus नहीं कर सकते, क्योंकि consumer goods एक इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक नेचर के होते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कंज्यूमर गुड्स के साथ कि आप कंज्यूमर गुड्स बेचोगे किसको, कंज्यूमर गुड्स जिसको आप बेचना चाह रहे हो एडवांस इकोनॉमीज को, वो इस वक्त खरीदना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उन इकोनॉमीज में इतनी डिमांड नहीं रहेगी जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थी। एंड दूसरा कि आप ये बेच के यू वांटेड टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स आपको बेचेगा कौन, जब सारा का सारा कैपिटल जो है वर्ल्ड वाइड कैपिटल वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं, रीड अबाउट इट, जिसको हम बोलते हैं मार्शल प्लान, हिस्ट्री में इसको मार्शल प्लान बोलते हैं, रीडेवलपमेंट ऑफ यूरोप को मार्शल प्लान बोलते हैं। तो जब सारा वर्ल्ड वाइड कैपिटल इसमें लगा हुआ है, रीबिल्डिंग ऑफ यूरोप आफ्टर द आफ्टरमाथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशली द डिस्ट्रक्शन दैट हिटलर कॉज, तो वर्ल्ड में आपको कैपिटल मिलेगा कहाँ से, तो वो इशू है। आज हम इन 3 इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो 3 मेजर एलिगेशंस हैं ऑन द नेहरूवियन एरा कि हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट नहीं अचीव कर पाए थे, और जो पब्लिक सेक्टर है हम उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एज ब्लैक होल्स, की वो इनकी जो लेगेसी है वो ये लेगेसी है कि यहाँ इन्होंने ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कमांडिंग हाइट्स पे डाला, और आज की डेट में हम देखते हैं ये मेजर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, BSNL की बात ले लो, या सितंबर में इफ यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स, इन फैक्ट आई हैव शेयर्ड एन आर्टिकल टुडे ऑन एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स, इफ़ यू सी एयर इंडिया जो है या इंडियन एयरलाइंस जो है वो उसका डिस्पोजल हो रहा है, सितंबर में उसकी बिड्स आ रही हैं। तो ये हो गया, MTNL हो गया। So you have this entire closet of skeletons of PSUs which are consistently loss making, bleeding the entire economy. In fact, if I will share, there was a lecture that I gave in Khalsa College around 2-3 months ago. I think I shared the link as well. So if you attended that, I'll share the PPT of that, in which I have talked about how the public sector policies has been in terms of the evolution, and क्यों आज की डेट में हम कहते हैं कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है। इफ़ यू सी बजट 2021, उसमें भी हमने कहा है कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो गवर्नमेंट अब अपने आप को गवर्नमेंट अपने आप को इन सारे सेक्टर से निकालने की कोशिश कर रहा है जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी में नहीं है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये आई कैसे, ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे, तो हम कहते हैं कि ये तो नेहरूवियन एरा में आई थी। बट व्हाट वी विल सी टुडे इज कि वो नेहरूवियन एरा में उनका गोल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका गोल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का था। जो हमने बात करी थी IEBR की, इनका जो मेन रोल होता था वो IEBR जनरेट करना था, प्रॉफिटेबल होना और इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जनरेट करना, और ये पैसे से फिर उसके बाद गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्लान फंड करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। फॉर एग्जांपल ONGC ये काम करती है, या HPCL, BPCL, ये सारे ये काम करते हैं जो प्रॉफिटेबल आपकी एंटरप्राइजेज हैं। तो ये सेल हो गया, गेल हो गया, ये सारी की सारी जो जिनको आप बोलते हो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में भी देर आर मल्टीपल टाइप, देर आर समथिंग कॉल्ड महारत्नास, रीड अबाउट इट, especially guys those of you who are going to for civil services later on, you need to know these classification: Maharatnas, then Navratnas, then Mini Ratnas, Mini Ratna class 1 and Mini Ratna class 2. Read about all these.
ठीक है, वी वोंट डू दिस इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, बट यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस. दिस इज ऑफन आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज और इन अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एज वेल. ठीक है, सो तो हमारे पास ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं हमारे पास. ठीक है, देन उसके बाद वी हैव दिस एलिगेशन विच वी विल डिस्कस अबाउट द नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर. And when we say neglect of education sector, we mean primary education here, and we will not be able to justify this, because when we see the plan and when we see the commentary on the plan, we can identify that the amount of funds that the government had allocated to the primary education sector was woefully low. Notwithstanding the fact कि education per se is in the state list. हमारा जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट आती हैं, योर यूनियन लिस्ट, योर स्टेट लिस्ट एंड योर कंकरेंट लिस्ट. एजुकेशन फाइंड्स इटसेल्फ इन द स्टेट लिस्ट. सो हम ये कह सकते हैं, गवर्नमेंट ये कह सकती है, कैन टेक द रिकॉर्स दैट बॉस हमारे पास तो एजुकेशन सेक्टर नहीं है, स्टेट्स के पास एजुकेशन सेक्टर है. बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द गाइडिंग फोर्स, यू आर द यूनियन, यू आर द मास्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स. You are the body which is setting the tone for the entire country. If you spend a significant amount on education, then other states will also be doing it. The constituent states will also be doing that. तो आपका फोकस एजुकेशन पे नहीं था, इसीलिए आज की डेट में we see that हमारे यहाँ सिर्फ skilled workforce सिर्फ 2% of our entire workforce है. हमारी workforce अराउंड 500 मिलियन लोगों की है, 50 करोड़ लोगों की है. उस 50 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड वर्कफोर्स हैं. सो 98% इज नॉट स्किल्ड. तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है. एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल रिविजन ऑफ, नॉट जस्ट अ रेफरेंस, नॉट इवन अ रिविजन, अ रेफरेंस ऑफ what you would have studied in the endogenous growth model, the Romer growth model, जहाँ पर हम over the period of time technology and ideas का production function के बारे में बात करते हैं. It's not in your course, but I'll still like to give you reference, because I want to bring that point out कि how do you score well in subjects like Indian economy, whether it's your graduation papers or whether it's your civil services paper. ठीक है, तो ये यहाँ तक की हमारी डिस्कशन थी. Then we had talked about the Mahalanobis Nehru Mahalanobis model. We had talked about the second 5-year plan में इन्होंने शुरू किया. हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान था. हेवी इंडस्ट्रीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे. एंड हेवी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट रेशो ज़्यादा है, जहाँ पर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज ज़्यादा होंगे. ठीक है, वी गिव द एग्जाम्पल ऑफ वॉट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस आर. तो आप बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे थे, आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती रहे और आपका जो आउटपुट है, जो इनकम है कंट्री की, वो इंक्रीज होती रहे. ये आपका एम था. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना. और इन्वेस्टमेंट आप वहाँ डालना चाह रहे थे जहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न्स आपको मिल पाएँ. तो इसीलिए आपने एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अपनाया. This is something again you will definitely study, whether in civils, or I'm not sure if you study that in development economics. Then ये पूरा प्लान जो है ये फील्डमैन्स मॉडल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, एटलीस्ट रिलेटेड था, इफ नॉट इंस्पायर्ड. एंड वी अडॉप्टेड द प्लानिंग मॉडल जो हमने 2014 में वी हैड शेड ऑफ, बट वी हैड अडॉप्टेड दैट 5-year प्लान मॉडल फ्रॉम द सोवियत यूनियन इटसेल्फ. नाउ वी हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि स्ट्रैटेजी क्या थी. नेहरू मालानोबिस बेसिकली कह रहे थे कि बॉस हमें अपनी करंट कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, हमें कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट हमारी फ्यूचर कंजम्पशन ज़्यादा हो पाए. सो इन अ सेंस यू वुड हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, यू वुड हैव ऑल्सो स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरजेनरेशनल कंजम्पशन. पढ़ा है गाइज? इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन पढ़ा? देयर इज अ चैप्टर इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन. हैव यू स्टडीड दिस? सो इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन के बारे में बात हो रही है, अक्रॉस द पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है. एंड इसी से रिलेटेड गाइज, जस्ट नॉट एसोसिएटेड, बट ऐसे ही आपके इंटरजेनरेशनल इक्विटी की भी बात आती है जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो, कि आप डेवलप करना चाह रहे हो, आप डेवलपमेंट पे इतना फोकस करना नहीं, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, फोकस नहीं करना चाह रहे हो कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो सफ़र कर जाए. सो उस तरीके का हमारा यहाँ पर भी अप्रोच था, that you are willing to sacrifice your current consumption for a sustainable future consumption. ठीक है, इसीलिए आप कैपिटल गुड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते थे, बिकॉज कैपिटल गुड्स
has the ability to produce more capital goods and more consumer goods. So that was the kind of the dilemma that the planners faced, and they had put their wager on more of capital goods production as compared to consumer goods production. And if we see the Vakil Brahmanan strategy focused more on the consumer goods. Then we also have to identify a key distinction between two factors, guys. So that distinction has to be drawn between what is the model and what is the plan. As I told you, plan is an overall framework. सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो 1956 से 61 का जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो एक बड़ा प्लान है, और उसका एक सबसेट आपका जो है मॉडल है. मॉडल इज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट प्लान में बाकी सारी चीजें भी हैं. सो एलिमेंट्स लाइक एग्रीकल्चर, एलिमेंट्स लाइक इन्फ्लेशन, बीओपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दीज वी विल नॉट फाइंड it's mentioned in the model, because model exclusively talks about how to industrialize the economy, how to increase the income, whereas the plan did talk about all these factors which the model did not. So you cannot unfairly criticize the Nehru-Mahalanobis strategy by criticizing its model and not focusing on the kind of second 5 year plan that was actually adopted. फ्लॉस के बारे में हमने बात करी थी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बारे में बात करी थी कि ये जो सिंपली बोल रहे हैं कि हम जितना भी प्रोड्यूस करेंगे. अब इन्होंने डिमांड का कंस्ट्रेंट के बारे में बात नहीं करी. इन्होंने कहा कि पूरा सप्लाई साइड मॉडल है, एंड ये जो मॉडल है ये वर्क कर सकता है इन अ सोवियत सेटिंग वेयर the entrepreneurs can be forced to basically reinvest their surplus into where the government wants, whereas in India where you have a ubiquitous private sector, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट को देख के इन्वेस्ट करेगा रादर देन गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसीज को देख के. सो दैट possibly is something which is not possible in a country like India. We talked about the Vakil and Brahmanand wage good model as well, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते थे एग्रीकल्चर को एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री. एंड दे टॉक्ट अबाउट more work on the agrarian sector, more work on the consumer goods, which is basically your corn and clothing. ठीक है. एंड ये कहते थे अनएम्प्लॉयमेंट इनकी वजह, इन गुड्स की ना होने की वजह से है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन योर कैपिटल गुड्स. बट इनकी जो थ्योरी थी उसमें ये मेजर 3 फ्लॉज थे जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो but in a sense, when you compare both of them, you can easily say that the Nehru-Mahalanobis strategy underestimated the consumer goods, whereas the Vakil Brahmanan strategy underestimated capital goods. Guys, make sure just make a correction in your reading. ये reading में ना ये line शायद से थोड़ी सी गलत दे रखी है. I had pointed it out last year as well. So when you are going through the reading, ये line जो है I think उल्टी दे रखी है. So make sure you do that correction in the reading itself. Then we had also talked about the linkage between agriculture and industry. तो जब हम agriculture and industry की linkage के बारे में बात करते हैं तो we see that the plan did talk about that agriculture और industry are intertwined, and the reason that they are intertwined is कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसकी वजह से उसके जो आउटपुट होगा वो एग्रीकल्चर इनपुट्स के फॉर्म में जाएगा. ट्रैक्टर्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, केमिकल्स हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये सारे इंडस्ट्रीज बनाएंगी. सीड्स हो गया. और जब एग्रीकल्चरल इनपुट बनेगा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो 2 फैक्टर जनरेट होंगे, और ज़्यादा एग्रीकल्चर की इनपुट्स चाहिए होंगे, और इनकम बढ़ेगी तो और ज़्यादा डिमांड होगी गुड्स की. तो ये इनके लिंकेज के बारे में बात है. एंड when we see the number of speeches that Nehru gave, and it is quite evident that he was, at least in his speeches, he was very serious about the growth in the agrarian sector. However, when we compare the planned expenditure towards agriculture, we see that if we compare the first 5 year plan to the second 5 year plan, the outlay towards agriculture was nearly halved. So probably in that sense, the government did not put the money where its mouth was. ठीक है. And later on, this entire issue of food sovereignty, this food sovereignty का issue, where the issue of food sovereignty,
that we need to be independent in terms of our food requirements. This was then taken forward by Prime Minister Lal Bahadur Shastri and then by Indira Gandhi, and we initiated the reforms, what is called as Green Revolution, in the late 60s and in the early 70s, and then expanded in the early 80s. Then increase in income के बारे में हम बात कर चुके हैं. That our overall program was that we should not rely on anyone else. हम बाहर से रिलाई नहीं करना चाह रहे थे. सो देयरफॉर कोई मेजर फॉरेन असिस्टेंस के बारे में बात नहीं हुई. फॉरेन असिस्टेंस ओवरऑल प्लान में सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट कर रहा था. 95% जो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर था वो सारा का सारा डोमेस्टिक सोर्सेज से आ रहा था. एंड उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट था वो एक्सपेक्टेड था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा नहीं था इसलिए, और हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं थी, तो इसलिए हमने प्रमोट किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे एंड ये जो बेचेंगे, ये जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से ये पैसा जो है ये नेशनल डेवलपमेंट के अंदर जाएगा. So if you see in its incorporation, the public sector enterprises were not envisaged to be an extension of a state. Extension of the state का मतलब basically ये है कि वो इस तरीके से imagine नहीं किए गए थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जाके बोल रही होगी कि बॉस इसको पैसा दे दो, इसको पैसा मत दो, यहाँ पर इस स्कीम में इतना पैसा जाना चाहिए, तो या फिर वो बोले कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट कर लो और ये प्रोजेक्ट मत करो. आज की डेट में क्या है, आज की डेट में जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और बाकी सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि उनके जो इंडिपेंडेंट उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मेजरली IAS ऑफिसर्स होते हैं, और उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत सारे होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन रहता है, और ये इंटरवेंशन हटाने के लिए ही, इनको इंडिपेंडेंट रखने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये महारत्ना मिनी रत्ना शुरू किया था. महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, कि आप अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाओ, गवर्नमेंट आपको ऑटोनॉमी देगी. गवर्नमेंट आपको ऑटोनॉमी देगी अपना डिसीजन लेने के लिए, आपको गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो बेस्ड ऑन हाउ मच प्रॉफिट दैट यू आर जनरेटिंग, बेस्ड ऑन योर टर्नओवर, अगर आपका जैसे ONGC जो है वो महारत्ना है, सेल महारत्ना है, गेल महारत्ना है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जिनका टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है. तो गवर्नमेंट कहती है कि एक लिमिट तक अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है. तो गवर्नमेंट ने इनको ऑटोनॉमी भी देनी शुरू कर दी है. ये 1986 में शुरू हुआ था. 1986 में ये MOU सिस्टम शुरू हुआ था अंडर अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी. अर्जुन सेन गुप्ता. I'm giving you all of this, guys. You will not require this in terms of your paper, but in general, when you're going for your competitive exams, you would need all of this information. So ये अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की वजह से ये आपको ये मिला था, प्रमोशन मिला था कि अच्छा यार हम गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस को थोड़ा फ्री अप कर देते हैं. बट एज यू कैन सी इनका जो रोल था ये वेलफेयर का रोल नहीं था. ठीक है, इनका रोल ये नहीं था कि आप चीप रेट पे सामान मार्केट में बेचो और हमारे लिए वोट गार्नर करो. तो आज की डेट में क्या है कि बैंक्स जो हैं वो एक्सटेंशन बन गए हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के. गवर्नमेंट क्या कहती है, इलेक्शन आने से पहले गवर्नमेंट क्या कहती है, भैया लोन सारे लोन वेवर कर दूंगी, मैं सारे फार्म लोन्स का वेवर कर दूंगी. भाई फार्म लोन का वेवर अगर आप कर दोगे तो बैंक्स की तो प्रॉफिटेबिलिटी चली जाएगी ना. तो आपने वहाँ से तो आपने नॉन इकोनॉमिक डिसीजन ले लिया पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए. तो ये अब ये जो होना शुरू हुआ ये बाद में होना शुरू हुआ, 1970s ऑनवर्ड शुरू हुआ, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पार्ट माना गया कि ये गवर्नमेंट के ही हाथ का पार्ट है, गवर्नमेंट उठा के इनके साथ कुछ भी कर सकती है. सो वी सी दैट दिस ऑब्जेक्टिव वाज नॉट देयर इन द इनिशियल पोर्शन. इनका काम था कि प्रॉफिट कमाओ और फिर IEBR के थ्रू गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान को प्रोजेक्ट को फाइनेंस करो. Then we also saw the record of the record of growth. इसको यहाँ से चेंज कर दो. This should be record of growth. ठीक है. So if we compare the growths of the economy and we see that हमारा जो ग्रोथ रेट था वो प्री इंडिपेंडेंस से कंपेयर करके यहाँ पर ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट हमने अचीव किया. एंड इनफैक्ट यहाँ पर अच्छा ग्रोथ रेट अचीव किया. एंड इनफैक्ट व्हेन वी कंपेयर इट टू द ओवरऑल ग्रोथ रेट,
हम पूरे ओवरऑल ग्रोथ रेट के साथ कंपेयर करें तो कंपेरेबल ग्रोथ रेट हमें मिल रही है फॉर द 50 ईयर्स. तो दिस इज नॉट अ लेसर ग्रोथ रेट. इनफैक्ट इंडस्ट्री में तो ग्रोथ रेट ज़्यादा ही है एज कम्पेयर टू the 50 years from 1947 to 2000 till 2000. So ये जो ग्रोथ का पीरियड, ये जो पीरियड है, वी कैन नॉट से दैट हमारा जो ये जो हमारा नेहरूवियन पीरियड है उसके अंदर ग्रोथ रेट कम थी. सो इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट क्वांटिटी, जब हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, दिस इज एटलीस्ट मोर देन व्हाट वाज अचीव्ड इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी कंपेयर करें तो हमारी उसी लेवल की ग्रोथ रेट है. सो दैट मीन्स समथिंग हैपेंड बिटवीन 1964 एंड 1999. उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है. इस पीरियड में हमने डिसेंट अचीव की ग्रोथ रेट अचीव करी है. एंड दिस इज क्वालिटेटिवली ऑल्सो बेटर बिकॉज यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात होती है, क्योंकि इस पीरियड में हमने वही चीज़ करी है जो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बेस करी है. हमने अपना इंडस्ट्रियल बेस सेटअप किया है. वी हैव सेट अप आवर इंडस्ट्रियल बेस. सो जो ये ग्रोथ रेट होगी इंडस्ट्रियल बेस की, चाहे वो ज़्यादा ना हो, बट इसकी जो क्वालिटी होगी दैट विल बी मच बेटर. अगर इसमें 2% ग्रो कर रहा है और इसमें 2% ग्रो कर रहा है, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोनों में 2% का ग्रोथ है, ये ग्रोथ रेट ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें आपकी टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन हुआ है इकोनॉमी के अंदर. ठीक है. सो यू कांट जस्ट टेक द फाइनल नंबर एंड से यार ग्रोथ ज़्यादा या ग्रोथ कम है. यू हैव टू ऑल्सो सी द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट ग्रोथ. वो ग्रोथ किस वजह से हो रही है और कैसे हो रही है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और ज़्यादा इतनी नीश नहीं है जितना नीश इस एरिया में था, छोटे छोटे सेक्टर्स में. देन एंड इवन इफ वी कंपेयर इट टू आवर कंटेम्प्रेरी कंट्रीज, तो हमारी ग्रोथ रेट कंटेम्प्रेरी कंट्रीज से ऑलमोस्ट बराबर ही थी. Now comes the topic what we had to discuss, the possible misconceptions about the Nehruvian era. यहाँ तक कोई doubt guys? We just had a quick revision of what we had done. कोई doubt? So let's talk about the first neglect, about the possible your neglect of agriculture or not. तो अब Pulapure Balakrishnan says दैट बॉस निगलेक्ट कैसे हो सकता है. निगलेक्ट दो चीज़ों से हो सकता है. निगलेक्ट या तो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर इसके अंदर आप पैसे ना दो, आप बेसिकली पॉलिसी में निगलेक्ट कर दो, कि दैट मीन्स आप उस सेक्टर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो. ठीक है, आपने वो सेक्टर पूरा इग्नोर ही कर दिया. तो इस एक ये तरीका है निगलेक्ट करने का किसी भी इंडस्ट्री को. ठीक है. दूसरा या किसी भी सेक्टर को, दूसरा निगलेक्ट करने का तरीका है कि उसको आप सफिशिएंट रिसोर्सेज ही मत दो, आप उसको पैसा ही मत दो. ठीक है. तो ये दो तरीके हैं निगलेक्ट करने के किसी भी सेक्टर को. बट जब हम देखते हैं पहले 3 5 ईयर प्लान्स का, ना यहाँ पर अगेन पुलापरे बालाकृष्णन इज काइंड ऑफ जस्टिफाइंग, बिकॉज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान से सेकंड 5 ईयर प्लान को हम कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर का जो बजट था, आउटले था, वो हाफ हो गया था. ठीक है. But when we see the total investment in the first 3 5 year plans, जब हम तीनों 5 year plans को ऐड कर लें और उसके अंदर एग्रीकल्चर के साथ में इरीगेशन भी ऐड कर लें. The reason that we are adding irrigation is क्योंकि इन 5 year plans में हमने इरीगेशन में भी बहुत पैसा डाला था थ्रू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. मल्टीपर्पज, तो you must have heard about the Hirakud Dam and the Bhakra Nangal Dam. तो ये सारे जो मेजर रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स थे, इनको रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, रिवर वाटर. ठीक है. तो ये जो मल्टीपर्पज डैम्स हैं, मल्टीपर्पज रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़े ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पीरियड में उठाए थे. तो अगर हम इरिगेशन और एग्रीकल्चर दोनों को ऐड कर लें तो हमारा जो आउटले है वो 22% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इन पे खर्च हुआ, वेराज इंडस्ट्री में सिर्फ 17% खर्च हुआ था. तो that means in terms of resources, sufficient resources were given to this particular sector, and we cannot say that it was kind of ignored in terms, at least in terms of the expenditure. Then if you read Nehru's speeches, Nehru has given a number of speeches where he talked about that we cannot fail in agriculture. In fact, he became very vociferous at the end of his life that हमारे जो एग्रेरियन ग्रोथ है वो कम नहीं हो सकता. इनफैक्ट वी हैव टू चेक दैट हमारी एग्रेरियन ग्रोथ जो अच्छी हो, वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ से.
तो यही वो एक स्टेटमेंट आई हैव पिक्ड अप. यू कैन इन योर रीडिंग देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई हैव हाइलाइटेड है, वेयर ही सेज दैट इफ वी फेल इन एग्रीकल्चर इट डज नॉट मैटर व्हाट एल्स वी अचीव. How many plants we put up, our economic development will not be complete. Agriculture is the most important, is more important than industry, for the simple reason that industry depends on agriculture. So a number of speeches of Nehru clearly outlines that in his mind, by the end of his term, by the end of his life, he was very clear that we cannot ignore agriculture. Agriculture has to take off. But he did not live long enough to see that we, just after his death, we were able to transform our agrarian sector due to green revolution. So he was not alive to see that, but at least in terms of his speeches, we can see that he did not ignore the agrarian sector. And if we see the flow of credit to agricultural sector, it increased from 70 crores in 1950-51 to 2000 crores in 1975-76. So धीरे धीरे agrarian sector को funds भी खूब सारे मिले थे. Even now there is something called priority sector lending. Please read about it. You will probably read a little, you will probably see this term in money and banking. I'm not sure if that's in your course, but please read about priority sector lending. Read about this कि priority sector lending क्या. Agriculture forms in the priority sector lending. To just give you a small input कि अगर कोई particular कोई scheduled bank 100 रुपए का लोन ओवरऑल साल में देता है, तो हम उसको कहते हैं कि बॉस, अगर 100 रुपए का अगर आप लोन जनरेट कर रहे हो, लोन दे रहे हो मार्केट में, तो उसमें से 18 रुपए जो होने चाहिए वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को जाने चाहिए. ठीक है, तो उसको एग्रीकल्चर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बन जाते हैं. ठीक है, तो हर बैंक को अपने लोन पोर्टफोलियो में 18% जो है वो एग्रीकल्चर को रखना पड़ेगा. ऐसे ही टोटल 40%, इस 100 रुपये में से टोटल 40% जो है, 40 रुपीज़ जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को जाएगा. और बेसिकली उस 40 रुपीज़ में से 18 रुपये जो है एग्रीकल्चर को जाना चाहिए. बाकी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है, एक्सपोर्ट फर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें पैसा जाना चाहिए. तो हमने प्रायोरिटी सेक्टर, और ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1969 से. ये 1969 से ज़्यादा शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले जो हमारे बैंक्स होते थे वो लालाज के बैंक होते थे. लाला एंड ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते थे, उन सब के बैंक्स होते थे. और इसीलिए हमने इन सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया फॉर नेशनल डेवलपमेंट पर्पस. तो पहले हमने 1969 में नेशनलाइज किया, फिर 1980 में नेशनलाइज किया कुछ बैंक्स को. तो पर्पस वही था कि वी वांटेड द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू गो टू प्लेसेस दैट शुड यील्ड डेवलपमेंट. ठीक है, तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी ऑल एग्रीकल्चरल इनपुट्स वो सब्सिडाइज होते हैं. एग्रीकल्चरल इनकम इनफैक्ट कहीं पर भी टैक्स नहीं होती. इफ यू सी अक्रॉस इंडिया, एग्रीकल्चरल टैक्स कम्स अंडर स्टेट लिस्ट. स्टेट कैन पुट एन एग्रीकल्चरल टैक्स इफ इट वांट्स, बट किसी भी स्टेट में अभी ये पावर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर को टैक्स कर पाए, बिकॉज इट विल बी अ वेरी इलेक्टोरली इट विल बी अ सुसाइडल स्टेप टू टेक. ठीक है, सो and if we see, if we compare the performance of agriculture in the Nehruvian period as compared to the colonial period where you had something called commercialization of agriculture, तो हमें दिखता है कि agricultural growth जो है इस period में अच्छा हुआ as compared to the previous period. Then comes the next allegation. The next allegation which is there on the Nehruvian period is that of the wasted past. Not of the wasted past, that of the fact that आपने जो पॉलिसीज जो अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया इस पीरियड के अंदर, वो सारी लॉस मेकिंग कंपनीज बन गई. दीज वर ऑल वाइट एलिफेंट्स. और वाइट एलिफेंट्स बेसिकली वो होता है जो आपको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, होता है ना, हम हिंदी में भी बोलते हैं कि ये तो सफ़ेद हाथी है. ठीक है, जिसको पालना बहुत मुश्किल है. ठीक है, which country is the country of white elephants, guys? Which country is famous for white elephants? अरे geography simple. Yes, Thailand. कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना Thailand, especially a place called Phuket. It's a beautiful place. I've had the opportunity of visiting it twice.
तो it's a beautiful place. Do visit this particular country. Then, so if you see public sector enterprises, तो public sector enterprises जो हैं, these were initially, they were imagined, they were active agents of resource mobilization. We call them as active agents of resource mobilization, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही थी इस पीरियड के अंदर कि ये कंपनीज जो हैं ये प्रॉफिट बनाएं, और प्रॉफिट बना के फिर उसके बाद जो इसके प्रॉफिटों से हम IEBR लेंगे और उससे डेवलपमेंट करेंगे. तो इनका काम वेलफेयर का नहीं था. जो इनका कन्वर्जन था एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वेलफेयर एजेंसी में, ये आफ्टर डेथ ऑफ नेहरू है, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, वेयर दे वर नाउ इमेजिन्ड एज एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट्स. इनका काम पावर्टी रिडक्शन का हो गया. सो ये इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, इनके अंदर रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा आ गया. ये बेसिकली कमांडिंग हाइट्स पे भी पहुंच गई, जहाँ पर इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं था. मोनोपोलीज थी, लिटरल मोनोपोलीज थी ये. एंड दे वर रूलिंग द इंटायर कंट्री, काइंड ऑफ रूलिंग द इंटायर कंट्री. तो इस पीरियड के अंदर ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, यहाँ पर ये लॉस मेकिंग बननी शुरू हो गई, क्योंकि इनका काम वेलफेयर का होना शुरू हो गया. इनको हमने बोला कि बॉस आपको वेलफेयर करना है, आपको चीप रेट पे मैक्सिमम लोगों को सप्लाई करनी है अपनी सर्विसेज, क्योंकि उससे आपको वोट मिलेगा, पावर्टी रिडक्शन होगा, और पावर्टी रिडक्शन होगा तो गवर्नमेंट जो होगी उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट फिर से इलेक्ट हो जाएगी. और ये आज तक चलता आ रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर. जब भी इलेक्शन होता है हम कोई ना कोई जुमला करते हैं और कहते हैं कि हाँ यार, आप लोगों को हम कहते हैं, स्पेशली एग्रेरियन सेक्टर में, हम आपको फार्म लोन वेवर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सो दैट आपको लोग वोट कर दें. Then and if we analyze Professor Jagdish Bhagwati's quotation here, he says that these were capital intensive white elephants, and you will learn in this semester that an economy like yours should not work on capital intensive technology. क्यों नहीं काम करना चाहिए? पढ़ा है गाइस, ये तो अभी तक पढ़ लिया होगा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर. कैपिटल इंटेंसिटी, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज, लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज, यस नो. अरे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, और उसके बाद हेक्सारोलिन पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? ओके, लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ अपॉन दिस. ठीक है, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो बेटर. देखो, अगर हम इंडिया और US को कंपेयर करें, तो गाइज ये मुझे बताओ कि किसके पास लेबर, सपोज हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो हैं, एक लेबर है और एक कैपिटल. तो गाइज मुझे बताओ किसके पास लेबर ज़्यादा होगी, किसके पास कैपिटल ज़्यादा होगी? इंडिया के पास लेबर ज़्यादा होगी, कैपिटल कम होगी. US के पास लेबर कम होगी, कैपिटल ज़्यादा होगी. ठीक है, अब लेबर को हम कैसे देखते हैं? W से. लेबर की कॉस्ट क्या है? W. कैपिटल कॉस्ट क्या है? R. सेम, लेबर की कॉस्ट W, कैपिटल की कॉस्ट R. तो जहां पर लेबर ज्यादा होगी वहां पर लेबर की कॉस्ट कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी. तो दैट मीन्स अगर मैं रेशो के फॉर्म में देखूं, तो रेशो के फॉर्म में W/R, W इंडिया में कम होगा, R ज्यादा होगा, क्योंकि लेबर ज्यादा है हमारे पास, तो ऑफ कोर्स कंपटीशन से वेज रेट कम हो जाएगी, और कैपिटल हमारे पास कम है, इसलिए इंडिया में कैपिटल महंगा होगा. तो W/R ऑफ इंडिया विल बी लेस देन W/R ऑफ US. तो ये जो W/R बता रहा है, ये W/R मुझे बता रहा है फैक्टर अबंडेंस के बारे में. फैक्टर अबंडेंस के बारे में बता रहा है, किस देश में कौन सा फैक्टर ज्यादा है. इसको देखते के साथ ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि इंडिया इज, इसको देखते के साथ ही मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूं दैट इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री एंड US इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री. यहां तक क्लियर है गाइस? किसी को यहां तक डाउट? किसी को डाउट? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूं. अब जब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूं, तो मैं दो प्रोडक्ट लेता हूं. एक मैं लेता हूं वीट और एक लेता हूं क्लॉथ. ठीक है, अब मुझे ये बताओ
वीट में ज्यादा कैपिटल लगेगा कि लेबर में? और ये दोनों प्रोडक्ट्स किस चीज से बन रहे हैं? ये दोनों प्रोडक्ट्स भी नहीं, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स भी इसी से बन रहे हैं, इन दोनों प्रोडक्ट से बन रहे हैं। अब मुझे बताओ कि वीट में ज्यादा लेबर लगेगी कि कैपिटल में ज्यादा लेबर लगेगी, कि क्लॉथ में ज्यादा लेबर लगेगी? इस क्लॉथ को कार भी ले सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो वीट में आप सब कह रहे हो कि वीट में लेबर ज्यादा लगेगी, कैपिटल कम लगेगी। क्लॉथ में लेबर कम लगेगी, कैपिटल ज्यादा लगेगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं K बाई एल रेशो लूं तो K बाई एल रेशो ऑफ वीट विल बी मोर देन K बाई एल रेशो ऑफ K बाई एल रेशो ऑफ वीट, हाँ, K बाई एल रेशो ऑफ वीट वुड बी लेस देन K बाई एल रेशो ऑफ कैपिटल। कम यूज होगी, लेबर ज्यादा यूज होगी। ठीक है, तो K बाई एल रेशो ऑफ वीट जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू क्लॉथ। तो अब मुझे इसको बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिटी या कैपिटल इंटेंसिटी। तो फैक्टर, इसको हम बोलते हैं फैक्टर इंटेंसिटी। ये दो कंसेप्ट आपको हमेशा समझ में आ जाने चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, अब अभी मैं लिंक करके बताऊंगा कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये पूरा कंसेप्ट हम इंटरनेशनल ट्रेड का क्यों पढ़ रहे हैं ना। अगर हम अपने कंट्री को इमेजिन करें, हम कह रहे हैं कि हम एक लेबर अबंडेंट कंट्री हैं, तो एक लेबर अबंडेंट कंट्री को आपके हिसाब से कैसा प्रोडक्ट बेचना चाहिए? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा वो नेचुरल एडवांटेज है। यहीं पे बात आती है हेक्सर-ओलिन थ्योरम की भी। हेक्सर-ओलिन थ्योरम एग्जैक्टली यही चीज समझाता है। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन योर लेटर लेक्चर्स, that it says that a nation which is labor abundant should export labor, it should specialize in labor intensive commodities and export that commodity। तो ये बिल्कुल लॉजिकल बात करा और इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये कहते हैं कि आप पहले देखो कि नेशन कैसा है। नेशन अगर लेबर अबंडेंट है तो उसको प्रोडक्ट कौन सा बेचना चाहिए, उसको प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करना चाहिए? उसको स्पेशलाइज करना चाहिए लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट में, उसको लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी वी कैन देन से दैट इंडिया शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ wheat and US should, ये इंडिया है, and US should specialize in the production of cloth and based on trade then एक दूसरे से आपस में ट्रेड कर लें ये प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद जो इक्विलिब्रियम आएगा दैट इक्विलिब्रियम विल बी मच मोर एफिशिएंट देन अगर आप आइसोलेशन में, जिसको हम बोलते हैं ऑटार्की, आइसोलेशन में रहना जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ऑटार्की पॉइंट, ऑटार्की से बेटर आ जाएगा। गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज, गेन फ्रॉम ट्रेड जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है, चाहे आप सिविल सर्विसेज में आ जाओ उसमें भी कई बार न्यूमेरिकल पूछते हैं, कई बार एंट्रेंसेज में भी न्यूमेरिकल आता है गाइस इसके ऊपर, और आपके एग्जामिनेशंस में तो इन एनी केस आएगा ही आएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल। समझ में आएगा गाइस कि क्या क्या होना चाहिए, हमारा ट्रेड पैटर्न क्या होना चाहिए कि इंडिया एज अ नेशन को लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उनकी जो इंडिया के जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो प्रोडक्शन पाथ होना चाहिए वो लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, क्योंकि हम तभी अपना स्पेशलाइज कर पाएंगे अपने अबंडेंट फैक्टर में। समझ में आया? ये लॉजिकल है, बिना टेक्निकली ज़्यादा जाए मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, नाउ यहां पर देखो क्या हुआ, ये हमने क्यों पढ़ा, ये सारी थ्योरी हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि इफ वी सी इंडियाज केस, तो इंडिया के केस में हमें दिखता है कि ये जो पीएससीज थे, ये सफेद हाथी की तरह ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट किए जा रहे थे। ठीक है, तो वी वर गोइंग अगेंस्ट व्हाट आवर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी सजेस्ट। तो इसीलिए वो लेबर ज़्यादा हम एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे, और हम हमारा जो ट्रेडिंग पैटर्न होगा दैट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। ठीक है, तो यहीं पे आप आगे जाके वो पढ़ोगे, लियोन्टिफ पैराडॉक्स पढ़ोगे, जब एक लेबर अबंडेंट कंट्री कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लग जाए। ठीक है, उसको हम लियोन्टिफ पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल्स एज वेल एज फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, नाउ सो दिस इज जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट टेक्निक था, जो ये कंपनीज थी, दीज वर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली ऑन व्हाट इकोनॉमिक principles suggest. Then apart from तो ये एक मेजर एलिगेशन है
ठीक है. बट when we see the period of Nehruvian period, we see that the saving, एटलीस्ट हम सेविंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर सेविंग्स जो थी नेहरू के पीरियड में वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही थी. तो दैट मीन्स एटलीस्ट ये कुछ प्रॉफिट हम ये बोल नहीं सकते कि प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, बट एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से जब हम कंपेयर करें जब हमें इसे प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो प्राइवेट सेक्टर से तो ज़्यादा कर रहे थे. अब उसमें वहाँ पर वो कैवियट्स ऐड करता है कि वी कैन नॉट से समथिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग्स, बट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स वी कैन से दैट जो वेस्टफुल लेगेसी जो हम बोलते हैं वो एटलीस्ट नेहरू के पीरियड में नहीं थी, बट नेहरू के बाद वाले पीरियड में हमने पूरा का पूरा पैटर्नेज ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चेंज कर दिया टुवर्ड्स पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन. सो वहां से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई इंडिया के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में. बट नेहरू के पीरियड में एटलीस्ट हाउ वी हैड एनविसाज्ड, हाउ वी हैड इमेजिन्ड देम वेरी डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर नेहरू टू फोरसी दैट कि उसके बाद क्या हो जाएगा. सो जो उनकी डेथ के बाद हुआ उसके लिए आप उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो. ठीक है. सो ये पूरा डिबेट है एंड पुलाप्रे बालाकृष्णन जस्टिफाइज द स्टैंड दैट नेहरूवियन पीरियड टुक in this period on the basis of the public sector savings that was there, despite the fact that many of these public sector enterprises turned out to be loss making enterprises. Then comes the last part of this reading, whereby we see that what was the impact in terms of education. Okay, what was the impact of Nehruvian era in terms of education? Now guys, in your endogenous growth theories you would have definitely done आपकी एक रीडिंग होती थी चार्ल्स जोन्स. याद है किसी को? मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 चार्ल्स जोन्स. याद है? नहीं याद है? किसी को याद है? चैप्टर नंबर 3-4 एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी, रोमर मॉडल. तो उसके अंदर हम बात करते हैं, इफ़ यू सी द एवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ थ्योरीज, तो पहले आपका AK मॉडल आता है जो बेसिकली आपका वहीं से आपका हैरोड मॉडल आता है. फिर आपका सोलो मॉडल आता है. सोलो मॉडल कहता है वो इसके डिसएडवांटेज जो इसका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है उसको आइडेंटिफाई करता है कि नहीं यार कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल नहीं होता, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है. और उस बेसिस पे वो कहता है कि बॉस मैं 50-60% तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन GDP बिकॉज ऑफ इनपुट फैक्टर्स लाइक लेबर एंड कैपिटल. बाकी जो GDP में इंक्रीज हुआ है वो एक्सोजेनस फैक्टर्स की वजह से, इसीलिए इसको एक्सोजेनस ग्रोथ थ्योरी भी बोलते हैं. एक्सोजेनस फैक्टर्स की वजह से हुआ है, जिसको हम बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या सोलो रेजिड्यू. ठीक है. इसी की वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो रोमर की आती है, जिन्होंने कहा कि बॉस ये जो थ्योरी है, ये जो एक्सोजेनस जिसको आप बोल रहे हैं मैं इसको एंडोजेनाइज कर सकता हूँ. और ये जो है ये इसके लिए है क्योंकि आइडियाज़ की वजह से, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से ग्रोथ होता है. तो जिसको आप एक्सोजेनस बोलते हो उसको मैं एंडोजेनस अपने वेरिएबल में लेके चलूंगा, और इसीलिए इस थ्योरी का नाम एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी है. और इफ़ यू सी द एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी, उसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ आइडियाज़ के बारे में भी बात करते हैं. हाउ डू आइडियाज़ ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो ग्रोथ ऑफ आइडियाज़ के बारे में बात हो रही है ये रोमर मॉडल के अंदर. यू कैन लुक अप टू योर चार्ल्स जोन्स टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मॉडल. ठीक है. Now again, this is where guys you can make a huge difference in your marks when you are writing such articles, when you are writing such answers, especially in competitive exams like Indian Economic Service and Administrative Service. कोई ये चीज़, हर कोई ये चीज़ लिख रहा होगा. when everyone qualifies प्रीलिम्स में जो 400 बच्चे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ बैठ रहे हैं, या फिर जो 1000 बच्चे IAS का पेपर लिख रहे हैं, वो सारे इक्वल लेवल, ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे ही हैं. बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ व्हेन यू ऐड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, व्हेन यू ऐड दिस पॉइंट कि यार ये चीज़ एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी भी बोलती है. ठीक है. तो और चाहे साथ में आप डायग्राम बना दो उसका, तो दैट विल फेच यू दैट एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट विच विल मेक द डिफरेंस. क्योंकि जो वेरिएंस ऑफ मार्क्स होता है वो बहुत कम होता है, बट वो छोटे वेरिएंस के अंदर ही या तो आप IAS बन जाओगे या फिर आपको कोई रैंक नहीं मिलेगी. बहुत छोटा वेरिएंस में 50-60 नंबर के वेरिएंस में रहता है. ठीक है. एंड व्हेन आई से 50-60 मार्क्स, तो 50-60 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 1750
तो इतना कम डिफरेंस पे सब कुछ होता है, सारे गेम पलट जाएगी। तो आपको हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि मैं इसके अंदर क्या वैल्यू ऐड करूं कि एग्जामिनर को लगे कि यार बॉस मैंने कुछ इस आंसर में कुछ डिफरेंट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज। देन so if you see the role of education was कि आप मास पॉपुलेशन को एजुकेट करो स्पेशली रूरल एरियाज में, और उसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल एक्रीशन होगा, और अगर ह्यूमन कैपिटल एक्रीशन होता रहेगा तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होगा। दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच चाइना टुक, दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच सिंगापुर टुक, दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच साउथ कोरिया टुक, दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच जापान टुक। कोई भी आप इंडस्ट्रियलाइज नेशन, कोई भी डेवलप्ड नेशन आप दुनिया में आज की डेट में देख लो, नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड हैज बिकम डेवलप्ड विदाउट इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल एंड इन हेल्थ केयर। व्हेन आई से ह्यूमन कैपिटल तो आप एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों के बारे में बात करते हैं, बी इट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। And until unless we put health and education in the prime goal as the prime goals of our national development, we will not be able to see this country develop. तो ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। And it is very absurd that when we see the outlays of the second 5-year plan, economist Krishnamurthy notes that we see the outlays of the second 5-year plan and then all these Nehru Mahalanobis plans, the amount of money that was allocated to education was woefully low, was absurdly low. So he talked about taking out money from the industries and then putting it up into the education sector. But it is an counter argument given that बॉस एजुकेशन तो हमारे 7th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में एजुकेशन तो स्टेट लिस्ट में है, तो स्टेट का पोर्शन होना चाहिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं हेल्थ भी स्टेट का पोर्शन है भाई। फिर तो यूनियन गवर्नमेंट बोलते भैया कोविड हम नहीं मैनेज करेंगे, स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट अपने आप देख ले। और जो गवर्नमेंट ने बीच में करा भी था कि गवर्नमेंट ने कहा भैया हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम तो हाथ खड़े करके बैठ गए हैं। तो ये आप नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। सो the kind of seriousness that you decide, if you take a particular sector seriously, the states will also see that and they will also start taking up that sector seriously. So when we see education, yes, partly responsibility lies with the state, but it does not absolve the Nehruvian period of the grave error of judgment that it did by not according it primacy in the plan documents. Now then we see the major achievements. अगर हम major achievements के बारे में बात करें नेहरूवियन पीरियड में, तो नेहरूवियन पीरियड के अंदर जो major achievements हैं वो है कि हाँ हमने रिकवरी करी इंडिया की ग्रोथ की। वी वर एबल टू रीइग्नाइट द ग्रोथ प्रोसेस। जो इंजन स्टॉल हुआ बैठा था उसको हमने रीइग्नाइट करा, हम 4% से ग्रो करे। हमने एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, ठीक है, एटलीस्ट व्हेन वी कंपेयर इट टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा। एंड हम कॉलोनियल एंक्लेव से सेल्फ इंडिपेंडेंट एंक्लेव की तरफ बढ़ना शुरू हुए, वेयर एज इट वॉज ईजिली पॉसिबल दैट हम डिसइंटीग्रेट हो जाते। जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला था, फॉर एग्जाम्पल विंस्टन चर्चिल ऑल्सो सेड दैट इंडिया विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एज अ कंट्री, इट विल बैल्कनाइज, बट वी वर एबल टू कोहेसिवली ग्रो एज अ यूनियन एज वेल। तो हम वो सारी चीज़ें, हम ऑटोनॉमी मेंटेन कर पाए। And we did not walk the path like countries like Pakistan did, कि जो complete military states बन गए। तो हम हमारी कंट्री में वो सब कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड जो हमने अचीव किया दैट वाज रिमार्केबल गिवन आवर हिस्टोरिकल बर्डन। देन कमिंग टू मेजर अचीवमेंट्स, ये मेजर अचीवमेंट्स भी सेम चीज़ें बार बात हो रही हैं। एंड इफ इन द एंड इफ यू वांट टू कमेंट देन यू कैन से दैट द शिबुलित ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में जो बात है वो आप क्या कर रहे हो, आप सेम ब्रॉड ब्रश से पूरे के पूरे पीरियड को 1950 से लेके 80s तक के पीरियड को पूरे को सेम ब्रश से पेंट कर रहे हो। what you need to see is that there was extraordinary illumination, extraordinary development that happened during the Nehruvian era. You cannot obscure that. What you need to see, you need to identify is you need to break this period into two portions, the Nehruvian era and the post Nehruvian era, and then you will be able to identify the nuanced undercurrents that took place in the Nehruvian era,
ठीक है. सो दिस इज आवर इंटायर रीडिंग गाइस. लेट मी ऑल्सो शो यू हमने क्या करा है ना. इफ़ यू सी द रीडिंग्स, ये हमने ये सारी चीज़ें नेहरू स्पीचेस के बारे में बात कर ली है, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये ग्रोथ कंपैरिजन के बारे में बात कर ली है. देन ये जो हम पहला निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात कर चुके हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एज ब्लैक होल्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो उसमें कराई थी. देन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के बारे में बात करी हमने, ये जो सेविंग्स के बारे में हमने अभी देखा, निगलेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करी, और फिर कंक्लूजन. सो अचीवमेंट्स के बारे में ये सारी हमने चीज़ें ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो विद दिस गाइज वी हैव फिनिश्ड विद आवर पर्टिकुलर रीडिंग. ठीक है. इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल बी हैप्पी टू टेक देम. And in the next class we will start with our next reading, which is Vijay Joshi's article on Indian economy. Similar period के ऊपर है, similar time frame पे है, but वो time frame ज़्यादा बड़ा है. जैसे ये नेहरू के पीरियड के लिए है, वो time frame almost till 2012-2013 तक के लिए. समझ में आया guys? Reading समझ में आया? Okay. So I have already sent you the PPT. Now people who are going to prepare, अगर PPT बनाना चाह रहे हो, first of all I would still warn you कि वो PPT मत बनाना. If you are making a PPT on this topic, then your benchmark will be my PPT. You have to do a better job than me to get good marks in the PPT. Otherwise don't go for this particular PPT. So you have to take it as a challenge. ठीक है. चलो. So we meet on Friday. On Friday we will start with the next reading of Vijay Joshi. Sir, I have a question. Yes. So sir, when we're talking about the educational aspect as to how the Nehruvian era did not really focus on primary education, was because it wasn't as urgent as other aspects were. I mean, if we focused on primary education, the returns would have yielded years later, like in decades later. So probably at that time, self-sustenance, that's why agriculture and industry were more focused on. Because at that time, there were speculations that India will fail to sustain as a democratic, sovereign country. So that was why they were focusing more on agriculture, industrialization and self-sufficiency. So Swasti, the issue is that same problem was faced by all other countries. ये problem तो साउथ कोरिया के साथ भी थी, ये प्रॉब्लम तो जापान के साथ भी. जापान ने तो 2 बार डेवलपमेंट किया है. ये देखो ना, जापान वॉज द लास्ट एंट्रेंट. इट गॉट इट्स दिस थिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन उसने कब शुरू किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन उसने शुरू किया 1880s में. वेराज यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सब ने तो 17th 18th सेंचुरी में शुरू कर दिया था. इन्होंने 19th सेंचुरी के वो भी बिल्कुल एंड में शुरू किया. And within 20 years, Japan was able to develop itself. And then in 1905, it was able to even defeat a country like Russia. छोटी सी कंट्री ने उसको डिफीट कर दिया. And इस छोटी सी कंट्री ने, because of its emphasis on education, it was able to even challenge the mights of US, and it was able to conquer half of Asia as well. वो क्यों किया? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा एजुकेशन के ऊपर. तो इंडस्ट्री भी तो आप तभी बिल्ड कर सकते हो जब आपके पास एजुकेटेड लोग होंगे. आप एजुकेटेड लोग, आज की डेट में हम इंडस्ट्री क्यों नहीं करा पा रहे हैं? हम इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किसको करेंगे जब हमारे पास एजुकेटेड ही नहीं है लोग? तो एजुकेशन के अंदर अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे तो उसका जो रिटर्न आएगा वो मल्टीपल फोल्ड्स का आएगा एज कम्पेयर टू एनी अदर सेक्टर. तो वो वहाँ पर बात हो रही है. और ये जितनी भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जापान जब पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया 1945 में, उसके बाद फिर उसने एजुकेशन में पैसा डाला, फिर डेवलप हो गई फिर वो कंट्री अगले 20 साल के अंदर. देन यू सी साउथ कोरिया ने ली कुआन के अंदर 15-20 ईयर्स में डेवलपमेंट कर लिया. इफ़ यू सी डेंग जाओपिंग वॉज एबल टू डेवलप चाइना इन अ स्पैन ऑफ 20-25 ईयर्स. आज की डेट में देखो, नो वन कैन चैलेंज द माइट ऑफ चाइना. इफ़ यू डू अ रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, आपको मैक्सिमम पेपर्स जो है 80% पेपर्स जो है वो चाइनीज़ मिलेंगे. ठीक है. क्वांटम कंप्यूटिंग में चाइनीज यूएस को सरपास कर चुका है, गूगल को सरपास कर चुका है. तो इट्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू डू. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग शॉट, बट इट नीड्स अ वेरी इमेजिनेटिव फोरसाइट. हमने कहा कि हम करंट कंजम्पशन पे नहीं फोकस करके हम इंडस्ट्री पे करेंगे.
बट वॉट वी मिस्ड वॉज कि हमें हमारी कंट्री जो है वो एजुकेटेड भी नहीं है. अगर हम एजुकेट करना शुरू कर देंगे तो ये एक जनरेशन एजुकेट होगी तो उसकी वजह से मल्टीपल जनरेशन एजुकेट होंगी, क्योंकि वो पूरी जनरेशन एजुकेट नहीं हुई, उसकी वजह से आने वाली जनरेशन भी एजुकेट नहीं हुई. हमने अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो बल्ज आज की डेट में हम खो रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने पिछले 50 साल में एजुकेशन में पैसा नहीं डाला. तो वो हमें वो हम पहले ही अगर कर देते तो आज की डेट में हम चाइना जैसे कंपैरिजन में आ जाते. समझ में आया? Yes, sir. But I mean, I still feel that perhaps skilling the labor was more important because anyway, the labor force would be constituted by people who won't be getting primary education, right? So, skilling that labor would perhaps be more important to. हाँ, बट स्किलिंग भी तो स्वस्ति, स्किलिंग भी तो पहले प्राइमरी एजुकेशन से ही शुरू होती है. आप प्राइमरी एजुकेशन तो दे दो. हाँ, I mean that is true, obviously. स्किल एजुकेशन कब आती है? स्किल एजुकेशन कम्स इन द क्लास 8th ऑनवर्ड्स. वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं उसे. वोकेशनल एजुकेशन जो है क्लास 8 ऑनवर्ड शुरू होती है. ठीक है, तो आप मैं कह रहा हूँ कि आप चौथी तक तो पढ़ा दो. इंडिया में तो चौथी तक नहीं पढ़ा रहे थे. प्राइमरी एजुकेशन तो कंप्लीट करा दो चौथी 5वीं तक. हम तो उस पर भी फोकस नहीं कर रहे थे. And so, as far as the agricultural aspect is concerned, while we're defending it, I mean, there is one thing that I feel is whatever significant happened in agriculture actually happened later than Green Revolution, and then under Indira Gandhi, the landlord system was, and all of those things happened much later. How नहीं. एग्रीकल्चर के मेजर रिफॉर्म्स इसमें इस पीरियड में हो चुके थे. इफ यू सी लैंड रिफॉर्म्स का जो मेजर एम्फोसिस था वो यहाँ पर आया था. इरिगेशन का जो मेजर एम्फोसिस था वो यहाँ पर आया था. So although when you talk about green revolution is a combination of three things: water supply, seeds, and your this thing, post harvest management. ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली कि आप ये क्रॉप उठा के इनसे खरीद लोगे एमएसपी पे. तो ये 3 चीज़ें थी. तो और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स तो खैर अलग चीज़ें थी. तो इट वाज काइंड ऑफ अ पैकेज. बट उससे पहले जो फोकस था वो इरिगेशन पे था. तो इरिगेशन इस पीरियड में हुई. लैंड रिफॉर्म्स, जो पहले ज़मींदारी सिस्टम होता था, ज़मींदारी सिस्टम जो है पूरा ख़त्म इन्होंने किया था. तो यहाँ पर मेजर रिफॉर्म्स हुए थे, बट वो काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे रादर देन पर से कोर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स. तो and to a certain extent, yes, you are also correct, but you have to understand that who is writing this particular article. Pulapre Balakrishnan is probably a Nehruvian or probably pro Congress. तो अगर आप इनकी पोजीशंस भी देखो तो ये नेहरू लाइब्रेरी है, एक नेहरू सेंट्रल लाइब्रेरी उसके हेड थे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बायस ऑफ द राइटर एज वेल. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि इंडियन हिस्ट्री, यू विल फाइंड दैट इंडियन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट्स बिकॉज द पीपल हु आर राइटिंग दैट हिस्ट्री आर बायस्ड, आर देमसेल्फ कांग्रेस प्रोपोनेंट्स. इसलिए उसको कांग्रेस को वो ग्लोरीफाई करेंगे. दी ऑल्टरनेटिव राइट विंग हिस्ट्री आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि उस टाइप के आपके वहाँ पर लोग नहीं हैं, राइटर्स नहीं हैं. तो वहाँ पर डोंट टेक एवरीथिंग बाय वर्ड. You also have to see the undercurrent of the biasness that has crept into the article because of the kind of philosophy that the writer himself holds.